Welcome to episode 2 of Plain Talk. My name is Muzammil Maqbool, and in this episode, we're going to talk about a critical and important issues related to children. Around 92,000 calls were made on a government helpline reporting child abuse and violence across India. Yet there may be thousands of children, women, and especially children with special needs who cannot call and report any abuse or domestic violence happening on them. In this regard, I have with me two experts who have experience on child rights and child development. On the panel first, I have with me Saeed Mujtaba. He has completed his LLM in Human Rights and International Law. Mujtaba is presently working as a child rights lawyer at Child Guidance and Wellbeing Center, also known as Enhance Kashmir, supported by UNICEF India. Welcome, Saeed Mujtaba, on my podcast. Thanks, Muzammil. Mujtaba, 92,000 calls were made on a government helpline in just 11 days of lockdown. How serious is it? Basically, when we talk about the children in general, this COVID has a direct impact on the children's mental health as well as all the aspects of the children. True. Because a child is the most vulnerable section of the society. During this epidemic and after this epidemic, there will be more chances of the physical exploitation of the children. There are the more chances of the trafficking. Because when we talk about the South Asia, there are more chances of the trafficking of the children, Absolutely. forced begging, and the child labor. Absolutely. One thing which we can foresee that there will be a massive unemployment because of the COVID crisis. So this indirectly and directly will influence the life of every child. The moment the crisis started after the coronavirus, we have seen around 92,000 calls have been received by different child line services. Absolutely. About the In abuse just and 11 other days. things. Yes. So what needs to be done, that matters. First of all, I would like to emphasize that there must be the child protection services which are available in India. True. They must be declared as an essential under the essential laws. So it needs to be This done. is very, very important point you have mentioned. Child line services and any department working with children, should be, considered as essential service. See, the moment when the crisis started, there was the scarcity of the masks and the sanitizers. What the government did at the first go, they declared the sanitizers and the masks as the essential commodity. Absolutely. But none of the government advisory has come to the child service protection that it must be put into the essential commodities or the essential services. This is my first point. Number second, when we talk about the child in need of care and the protection, wherever they are, if they are in the homes, special homes, they need to be released. They need to be released because they need to go back to home. If they are in the detention, if they are the child in conflict with law, there must be the clear, even though there are the clear guidelines that all the children which are in any form of detention, they must be released. But if there are apprehensions that their release may give the birth to another factors like the disease or any other thing, at least there must be connection between their families through video conferencing, through social media, WhatsApp groups. Absolutely. Because we need to maintain the sense of the family. Absolutely. And one more thing is that one of the important factors which we are seeing in most of the globe, that we need to have the special healthcare schemes for the children. See, we have no special healthcare scheme in Jammu and Kashmir. Absolutely. We have the general health schemes, but for the children, the government now, this is the right time where we need to maintain the mental health, psychosocial of every person, including the children. There must be, the first dire need is that the government should start the mental health task force.
Absolutely. And that too at the national level. Absolutely. Mustafa, my next question is going to be regarding children in Jammu and Kashmir, and I want you to talk in. I want both of us, to talk in a language which can be very simply understood by masses in the state of in the Union Territory of Jammu and Kashmir. So, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक ऑल्टरनेटिव टाइम टेबल क्या होगा या क्या होना चाहिए, जो हमारी अभी एक सिचुएशन है, हमारे बच्चों के लिए कौन सा ऑल्टरनेटिव टाइम टेबल होना चाहिए? देखिए मुजम्मिल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। जिन हालात से अभी हम गुजर रहे हैं ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस, वी एज एन एडल्ट वी नो दैट समथिंग वायरस इज देयर एंड हमें ऐसे ऐसे तदाबीर करने चाहिए। इवन दो वी एज एन एडल्ट, हमारा भी एक रोजमर्रा जिंदगी का जो मामूल था वो मुतासिर हो गया, बट ये सारी चीजें बच्चों को नहीं पता। बिकॉज मार्च के अभी 5-6 क्लासेस ही हुए थे स्कूल में, अचानक एक एडवाइजरी आती है कि आपको बैक टू होम ही रहना होगा। तो छोटे बच्चों को हम ये कैसे अंडरस्टैंड कराएं कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप किसी अननेसेसरी चीज को टच नहीं कर सकते। कल तक मैं अपने बच्चों को चूम रहा था, उनको गले लगा रहा था, एंड आफ्टर एडवाइजरीज पास भी नहीं आने देते। तो समहाउ उनके दिमाग में ये होगा कि खुदारा ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, क्योंकि उनको लगता होगा कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तो एक ऑल्टरनेट सिस्टम देने की जरूरत है। आपके जरिए से मैं आवाम तक ये जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि एक ऑल्टरनेट टाइम टेबल बनाने की जरूरत है। कल तक मेरे बच्चों का क्या टाइम टेबल था, बट आज हमारा कुछ अलग होना चाहिए। इसमें ये भी नहीं है कि हम इनको और बदल कराएं, खाली स्कूल का काम दे दें, ये चीज भी नहीं करना है। जितने भी स्कूल के असाइनमेंट्स हो वो इंशाल्लाह होंगे, उनको वो असाइनमेंट्स किसी टाइम टेबल में किसी टाइम में फिट करके दीजिए। और स्कूल की बात आ गई, उनको आर्ट के साथ एंगेज कराएं। किसी का हॉबी हो सकता है, किसी का एम हो सकता है टू बी अ पेंटर या कोई और चीज आर्ट में, तो आर्ट के साथ एंगेज करने की जरूरत है। हमारे कश्मीर मुजम्मिल साहब, मैं आपको बताऊं कि हमारे कश्मीर में एक रिवायत रह चुकी है कि हमारे बुजुर्ग हमें दास्तानें सुनाते थे। एब्सोल्युटली। तो हमें उस चीज का एक रिवाइवल सिस्टम क्रिएट करना है। हमें बच्चों को वो दास्तानें फिर से सुनानी है। और मुस्तफा साहब, मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा कर सकते हैं वो पेरेंट्स ही अदा कर सकते हैं, राइट? एब्सोल्युटली, दिस टाइम होल रिस्पांसिबिलिटी लाइज ऑन द पेरेंट्स। तो उनको एक किसी टाइम टेबल में इन्हें मजहब की तालीम भी दे दें। इन सभी तदाबीरों में से एक रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप बच्चे के साथ डील करें, इन चीजों में से कि किसी भी तरीके की सख्ती से पेश आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं समझ सकता हूँ कि बड़े भी अभी उनका डेली रूटीन भी मुतासिर हुआ, वो भी नफ्सियाती तौर किसी न किसी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं जी, क्योंकि अब 10-15 दिन हो गए। बट वाइल डीलिंग विद अ चाइल्ड वी हैव टू बी वेरी चाइल्ड सेंसिटिव। जी मुझे सर जी, जो गवर्नमेंट का रोल क्या बनता है अभी? व्हाट शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट in these times of COVID-19? गवर्नमेंट का अभी सबसे पहला मैं कुछ चीजें इसमें रिपीट होंगी, लाइक कि हमें गवर्नमेंट इस टाइम देखिए गवर्नमेंट को 2 चीजें टारगेट करनी है कि क्राइसिस के दौरान हमें क्या करना है और पोस्ट क्राइसिस हमें क्या चीजें करनी है। देखिए ड्यूरिंग द प्रेजेंट क्राइसिस बच्चों को जितने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जितने भी एडवाइजरीज आई है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है या किसी और लैंग्वेज में है, बट हमें रीजनल कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को रीजनल लैंग्वेजेस में वो एडवाइजरीज बतानी, समझानी है। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है और इसमें स्टेक होल्डर पेरेंट्स भी हैं, केयर गिवर्स भी हैं। नंबर 2 गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन होम्स में बच्चे हैं तो उनका एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। उन बच्चों को कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन देना ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, इसमें ये कुछ फैमिलीज हमारे पास ये भी हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो, जो बाहर कुछ काम करते थे और शाम को अपने परिवार को खिलाते थे। बट इस टाइम पे उस फैमिली के जितने भी बच्चे होंगे तो इस टाइम पे गवर्नमेंट को ये मैपिंग तो ऑलरेडी की होगी गवर्नमेंट ने, उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस देने की जरूरत है।
और एक चीज मैं यहाँ पे बयान करना चाहूंगा, वो ये कि जितने भी चाइल्ड केयर सर्विसेज हैं, चाहे उसमें हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज आते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज आती हैं, चाइल्ड लाइन सर्विसेज हैं, इन सभी सर्विसेज को एक्सपैंड करने की जरूरत है। इवन दो वी आर इन इन्फेंसी स्टेज, और जब हम कश्मीर की बात करते हैं 2017 से ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम इन प्लेस आ गया, मुझे लगता है कि दिस द राइट टाइम जब हमें इस चीज को एक्सपैंड करने की जरूरत है। और पोस्ट क्राइसिस हमें क्या चीज करनी चाहिए, हमें एक ये जरूर चीज की और एडवोकेसी करनी चाहिए कि हर किसी स्कूल में अब मेंटल हेल्थ काउंसलर का होना अशद जरूरी है जी। तो दैट की देखिए कि हमारे बच्चे 7 to 8 आवर्स स्कूल में बिताते हैं, तो वहाँ पे एक मेंटल हेल्थ काउंसलर का होना अब लाजमी बन चुका है जी। और मुस्तफा साहब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो ये है कि आपका जो सेंटर है चाइल्ड गाइडेंस एंड वेलबींग सेंटर, जो इम्हेंस कश्मीर के अंडर आता है, विच इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय यूनिसेफ इंडिया, तो पेरेंट्स जो हमारे हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स हैं, वो कौन कौन सी सहूलियात हासिल होंगी उनको अगर वो आपके सेंटर फोन करेंगे या वहाँ पे आ सकते हैं? अभी तो खैर ऑनलाइन कंसल्टेशन ही हो रही है जी। देखिए, जो ही ऑन 20th मार्च इफ आई एम करेक्ट, जब ये एडवाइजरी आई कि सोशल डिस्टेंसिंग का या बाकी एडवाइजरीज आ गई, तो हमारे सेंटर ने भी ये इनिशिएटिव ले लिया कि ऑनलाइन बच्चे जितने भी हमारे ऑलरेडी वहाँ पे बच्चे आ रहे थे काउंसलिंग के लिए, एक तो हमने उन तक रीच की कि वी आर अवेलेबल थ्रू व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और एनी अदर मीडियम। तो हमने एडवाइजरीज भी इशू की, वाइडली डिसेमिनेट की थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू द प्रिंट मीडिया, सो दैट कि हम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। अब एक सहूलियत हमने आवाम के लिए ये भी रखी है, हमारा सेंटर 10 to 4 फ्रॉम मंडे टू सैटरडे अवेलेबल रहता है। बच्चे में आपको कोई भी नफ्सियाती दिक्कत लग रही हो, आप हमारे सेंटर को थ्रू फोन या किसी भी मीडियम के जरिए से अप्रोच कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स वहाँ पे 10 to 4 बैठे हैं, वो आपकी शिकायत को इंशाल्लाह दूर करने के लिए वहाँ बैठे हैं। आपके माध्यम से मैं अवाम उन्नास तक अपने नंबर देना चाहूँगा जी। इट्स 94-196-83109 जी। Thank you so much, Saeed Mujtaba Hussain, for being with us on 101 North podcast, and we hope to see you soon. Thank you so much. Inshallah. Thank you so much. Keep listening to 101 North. We'll be right back with another guest. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road gets rough ahead, where you're miles and you're miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said, 'cause you got a friend in me. 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 You got troubles, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We'll stick together and we'll see it through, 'cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Alright guys, I have with me another guest, Adil Fayaz Wattu. Adil is working with Child Guidance and Wellbeing Center, Imhans Kashmir, which is also supported by UNICEF India as a program coordinator. Very experienced in child development. Adil, welcome to 101 North podcast. Thank you, Muzammil, for having me on 101 North. Adil, I wanted to know about the impact on mental health of children and adolescents, during these crises. मुज़म्मिल, जो अभी हालात है ये हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है, चाहे वो बड़े हो या
बच्चे हो, हर किसी की मेंटल हेल्थ पे किसी ना किसी तरह का जो है इस पे असर पड़ गया। लेकिन जब हम बच्चों की बात करेंगे, उनमें ज़्यादा चांसेस है इस मेंटल हेल्थ इश्यूज के क्रीप अप होने के। वो इसलिए क्योंकि अगर हम जैसे हम बड़े हैं, हमारे पास एक्सेस है इंफॉर्मेशन का, या हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, या मूवीज देख सकते हैं, या बाहर जा सकते हैं, अपने लॉन में ही जा सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जो है उनके पास ये प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि देखिए उन स्कूल बंद है, वो बाहर नहीं जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं जा सकते हैं। उनका कोई जो रिक्रिएशन फैसिलिटीज वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी कम है, लेकिन अब जो जितनी भी रिक्रिएशन फैसिलिटीज है वो भी अभी एक्सेसिबल नहीं है बच्चों की रिगार्डिंग। अब जो भी बच्चे हैं वो सिर्फ अपने घरों में हैं, वो टीवी देख रहे होंगे। तो इसकी वजह से जो हालात है, इसकी वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा होगा, क्योंकि उनका जो नॉर्मल रूटीन है वो डिस्टर्ब हो गया। जब भी हम मुज़म्मिल क्राइसिस की बात करेंगे तो हर कोई बच्चा सेम तरीके से क्राइसिस को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। हर कोई बच्चा अपने अपने तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जो छोटे बच्चे हैं वो इसमें ज्यादा चिड़चिड़ापन दिखाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा डरावने ख्वाब आ सकते हैं, या ज्यादा गुस्सा करेंगे, या वो रोएंगे, या उनमें बेड वेटिंग कर सकते हैं। चाहे बड़े बच्चों की बात करें जो 8, 9, 10 साल की एज ग्रुप में होंगे, उनकी जो स्लीप पैटर्न्स हैं उसमें चेंज आएंगी। उनको वैसे भूख नहीं लगेगी जैसे वो उनको पहले लगती थी, या कम उनकी जो एनर्जी हो वो डिक्रीज होती जाएगी, या उनकी जो थिंकिंग पैटर्न है उनको जल्दी भूल जाएगा, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, वो किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, वो काफी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। जब हम एडोलसेंट्स की बात करेंगे, वो प्रेफर करेंगे, वो मुनासिब करेंगे कि अलग थलग रहना फैमिली से, वो अकेले रहना पसंद करेंगे, वो काफी अनसर्टेन रहेंगे फ्यूचर के बारे में, अपनी स्टडीज के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में कि अब क्या होगा, कब खुलेगा। तो हर कोई बच्चा डिफरेंट तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा क्राइसिस को। तो पेरेंट्स की अवलिन कोशिश ये होनी चाहिए कि वो एक ही यार्ड स्टिक से हर किसी बच्चे को नाम मेजर करे, तो वो पिक करे बिहेवियर एज के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से। I totally understand. Adil, and how should parents communicate with children in these crises? What should be the medium of communication for parents to speak with their children? देखिए, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। जो कम्युनिकेशन अभी का है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स को चाहिए, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ इस कोविड-19 जो इमरजेंसी इसके बारे में बात करें। ये जरूरी नहीं है कि यहीं से वो बच्चों को बोलेंगे, लेकिन जब बच्चा पूछे अपने फादर से, अपने मदर को कि मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता हूँ, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता हूँ, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस क्यों बंद है, स्कूल क्यों बंद है, मैं फ्रेंड के साथ खेल क्यों नहीं सकता हूँ, मुझे क्यों कंटिन्यूसली हाथ सैनिटाइज करने हैं, मुझे क्यों मास्क लगाना है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को डिटेल में इंफॉर्मेशन दे, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल इंफॉर्मेशन दे, ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन दे। वो उनसे झूठ ना बोले कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा, वो फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन ना दे। और पेरेंट्स अपने बच्चों को जो जरिए है इस प्रॉब्लम के फैलने के, वो बताए कि कैसे फैलता है, किस चीज़ों से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। उनमें हाइजीन प्रैक्टिसेस डेवलप करे, हैंड वॉशिंग या कफिंग एंड स्नीजिंग के मैनर्स। लेकिन जो भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे वो एज अप्रोप्रिएट हो। ऐसा ना हो कि पेरेंट्स 15 साल के बच्चे को भी वो इन्फॉर्मेशन से फीड करेगा जो 4 साल के बच्चे को इन्फॉर्मेशन देगा। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे वो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों से छुपाए ना इस हालात के बारे में। अगर बच्चा कोई सवाल पूछ रहा है तो बच्चे को रेस्पॉन्ड करे, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हमें पता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो काफी मैच्योरली, काफी ऑनेस्टली वो अपने बच्चों को इंफॉर्मेशन से आगाह करे। इसके अलावा मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, पेरेंट्स की से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपने घरों में जो बिहेवियर है वो ज्यादा पैनिक ना हो, क्योंकि जब वो पैनिक हो जाएंगे, क्योंकि एक तो वो कंटिन्यूसली न्यूज देख रहे हैं, उसकी वजह से काफी टेरिफाइंग न्यूज आ रही है कि इतनी डेथ्स हो गई, इतने पॉजिटिव केस आ गए। पहले तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अवॉइड करे कि एट स्ट्रेच यही न्यूज देखना है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने फैमिली में वो पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट करे, क्योंकि जब पेरेंट्स आपस में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो वो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके बच्चे नॉर्मली बिहेव करें। जब फादर और मदर ये बात करेंगे कि क्या बनेगा, हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तो बच्चा भी तो एक्सपोज्ड है उस चीज से। बच्चा भी जब वो चीज पूछेगा तो पेरेंट तो तब उसको कैसे कह सकता है नहीं यहाँ पे ऐसे हालात नहीं, यहाँ पे सब ठीक है, क्योंकि पेरेंट जब फादर या मदर ही अपने घरों में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। और इसके अलावा
पेरेंट्स को चाहिए कि इस वक्त वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, उनको ज़्यादा केयर दे, उनको ज़्यादा वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करे, उनके जो अपने कुछ अप्रीहेंशंस होंगे, कुछ कन्फ्यूजन होंगे वो दूर करे, ज़्यादा उनको सपोर्ट करे और अवॉइड करे कि अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को किसी जगह भेजने की, जैसे ननिहाल होता है या किसी रिलेटिव की जगह होती है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बच्चा सेफ है वो अपने घर में ही है। वो कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जहाँ पे नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी में बच्चा जो है वो अपने फैमिली में ही सेफ है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शफकत से पेश आए, ज़्यादा टाइम उनके साथ दे। और हाँ, अगर ऐसा कोई केस है कि बच्चा जो है अपनी फैमिली के साथ नहीं है, तो पेरेंट्स को चाहिए उस बच्चे को कंटिन्यूसली कॉल करे, वो उसकी खबर ले, वो ठीक है, उसको वीडियो कॉल करे, ताकि उसको भी एक एहसास हो, नहीं कोई है जो मुझे प्यार कर रहा है इस सिस्टम का, क्योंकि इस वक्त सबको लग रहा है कि हालात काफ़ी ख़राब है, तो ये जो होपलेसनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें कोशिश चाहिए कि अपने बच्चों को जो है पॉजिटिवली और सपोर्टिव मैनर में इस टाइम पेश आए। Absolutely, Adil, and I totally agree with you. I just wanted to know, where should parents seek help if in case they witness any change in in behavior of their children? हाँ, ये काफ़ी बेहद ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि जो भी हालात है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हालात है, तो इस हालात में उदास रहना या मायूस रहना इट्स नॉर्मल, क्योंकि हमारी जो सिचुएशन अभी है वो अब नॉर्मल है। लेकिन अगर आप पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी सिचुएशन मैनेज नहीं हो रही है, बच्चों का जो वो नॉर्मल रूटीन वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, काफ़ी बिहेवियर में, काफ़ी पैटर्न में काफ़ी चेंज है, तो पेरेंट्स को तब चाहिए, एक गुजारिश में पेरेंट्स को करूँगा, वो तब चाहिए कि वो मदद मांगे, लेकिन कौन सी मदद मांगे, वो सिर्फ प्रोफेशनल के पास जाइए। वो ऐसे नहीं किसी के पास भी अपने बच्चे को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हमारे आंखों में दर्द होगा तो हम तो ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, या हमारे अगर ये हड्डियों में दर्द है तो हम ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे। तो इसीलिए हर कोई बंदा जो होता है अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होता है, क्योंकि बच्चे काफ़ी फ्रेजाइल होते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए ऐसे ही किसी के पास अपने बच्चे को एक्सपोज ना करें, जो रजिस्टर्ड साइकियाट्रिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर्स है, सोशल वर्कर्स है। तो पेरेंट्स को यही चाहिए कि जो इस फील्ड का माहिर है उनके पास अपने बच्चों को ले जाए अगर उनमें उनको प्रॉब्लम लगती है। इसी ज़मीन में जो हमारा सेंटर है, चाइल्ड गाइडेंस एंड वेलबींग सेंटर, ये हमारे पास 14-15 मेंबर टीम है, सारी प्रोफेशनल्स की टीम है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो स्टाफ है वो हर अपने अपने हिसाब से हर किसी में एक्सपर्टीज रखता है कि अगर पेरेंट्स को लगे कि हाँ उनके बच्चे में कुछ चेंजेस है, बिहेवियर में चेंजेस है, किसी भी किस्म की उनमें तब्दीली लगता है उनको, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने सेंटर का कांटेक्ट नंबर शेयर भी कर सकते हैं उन पेरेंट्स के साथ। अगर उनको लगेगा हेल्प की ज़रूरत है, वो हमें रीच कर सकते हैं। Yes, and it will be your most kindness if you will share the contact number as well. हाँ बिल्कुल, हमारा जो फ़ोन नंबर सेंटर का है वो है 9419-683-109। मैं रिपीट करता हूँ, 9419-683-109। तो किसी भी पेरेंट कॉल कर सकता है इसमें 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, जो 6 वर्किंग डेज है इस टाइम। तो जिस किस्म की भी मेंटल हेल्थ या साइको सोशल सर्विस उनके बच्चे को उनको लगता है ज़रूरत है, तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि अभी हम एडवाइजरीज का काफ़ी ज़्यादा हमको भी एडहेयर करना है उनका, क्योंकि हालात वैसी नहीं है। तो ऑनलाइन सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी किस्म की। Absolutely. Thank you so much, Adil. This was very, very informative, and I'm sure that our listeners listening to this podcast will love it. Thank you so much. शुक्रिया मुज़म्मिल आपका। Bye. Alright guys, that is all from today's episode. We will be back with another one. Till then, stay home, stay safe, and keep listening to 101 North. Bye-bye. You got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too, but none of them could ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years roll by, our friendship will never die. You're gonna see that it's my destiny, 'cause you got a friend in me. Because you got a friend in me. I said you
got a friend in me. You got a friend in me.